Good morning, everyone. Am I audible? Can you see my screen? Everyone, if you can listen to me and if you can see my screen, please give me a confirmation. Yes, ma'am, visible. Thank you. So, in the last lecture, last week, we were discussing capital budgeting, its techniques, or the methods in economics. So, मैम आवाज बहुत धीरे आ रही है. okay, Vijay, am I audible now? Am I clear now? Yes, ma'am. ठीक है. So I was just telling that in the last week's lecture in economics, we were discussing the topic capital budgeting, and we had covered its meaning, nature, and other things, and we were to discuss the techniques or the methods of capital budgeting. So I covered that what are all the uh, methods of the capital budgeting, and now we have to discuss these methods in detail one by one. So as you can see in this current slide, the methods of capital budgeting are these are divided among two categories: traditional methods and the modern methods. Traditional methods, you've got two: payback period method and ARR, that is accounting rate of return method. Then in
modern techniques or the modern methods, we have three methods: NPV, PI, and IRR. NPV is net present value, PI is profitability index method, and IRR is internal rate of return. We will discuss in detail one by one. So firstly, we'll be covering payback period method. This method basically, जैसे कि इसमें name आपको दिख रहा है, name is payback period. So this method actually calculates the period or the time in which we will get the payback of the total invested amount. For example, if we have actually invested say 10 lakhs rupees in one project for 10 years and the recovery would be 1 lakh per year. So this method, through this method, we would be able to understand that okay, we have invested 10 lakh rupees and the returns would be 1 lakh per annum. So 10 years would be the payback period through which we would be able to get back that 10 lakh rupees invested amount. That is the payback period. So payback period, we will be understanding that it will not, this method will not tell us what will be the after that earnings when we will be receiving the entire amount, the invested amount. It will just tell us कि कितने total amount हमने जो invest किया था वो कितने सालों में या कितने period में हमको वापस मिलेगा. Payback period, payback होगा हमको investment amount. Got it? So it refers to the period in which the project will generate the necessary cash. जिस भी project में हम जो cash या जो भी हम fund invest कर रहे हैं, investment कर रहे हैं, इस मेथड से हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि किस पीरियड में हमको वो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी रिकवर्ड. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मींस द इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड, वो कितने टाइम में वापस आएगा और उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा, किस रेट से होगा, वो सब हम इस पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट नहीं करते ना, इसमें हम वो कवर करते हैं. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर मेथड विल गिव यू ओनली द टाइम कि इस टाइम पीरियड में हमको पैसा वापस मिलेगा. ऑल्सो कॉल्ड पे आउट या पे ऑफ पीरियड मेथड. जैसे पे बैक पीरियड मेथड के दो नेम्स और भी हैं, पे आउट मेथड या पे ऑफ पीरियड मेथड. इस मेथड में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेते. हम ऑलरेडी एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो चैप्टर था हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो हम पढ़ चुके हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी विल चेंज, कम होती है इन फ्यूचर या कुछ है, तो वो पर्टिकुलर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं करता. ये एक सिंपली हमें एक एवरेज अमाउंट पीरियड दे देता है जिसमें कि हमको वो टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वापस मिलेगा. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इसमें नहीं कंसिडर कर रहे हैं. द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट एक ही है तो हम उसको किस हिसाब से वेदर वी हैव टू टेक इट और नॉट, हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है. अर्निंग कैपेसिटी कैसे पता चल जाएगी कि जो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा रहे हैं वो हमें 2 साल में वापस आ जाएगा या 10 साल में वापस आएगा या कितने टाइम में वापस आएगा. तो टाइम पीरियड अगर बहुत ज़्यादा है, पे बैक पीरियड जो दिखा रहा है प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए शायद फीजिबल ना हो. या अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज 4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस पर्टिकुलर मेथड से, टेक्निक से, या जो इस मेथड का जो फॉर्मूला है उससे अगर हम चारों प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड निकालते हैं तो वो हमें जो सबसे कम टाइम में हमें पैसा वापस मिल रहा है, यानी कि वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है कि कम टाइम में हमें पूरा पैसा जो हमने लगाया था वो इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई और फर्दर आगे हम उससे प्रॉफिट भी अर्न करेंगे. तो जितना जल्दी पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, उतना जल्दी हम प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेंगे. तो अगर हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं और हमें ये डिसाइड करना है सिलेक्शन के लिए कि कौन सा बेस्ट है, तो मिनिमम जिसमें पे बैक पीरियड होगा वी विल गो विद दैट. सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. Now, it also emphasizes more on annual cash inflows, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में तो ऑब्वियसली फोकस कर ही रहा है क्योंकि हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसी की रिकवरी की बात कर रहे हैं, उसी के पे बैक पीरियड की बात कर रहे हैं.
तो बेसिकली इट इज एम्फेसाइजिंग ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, हर साल कितना कैश वापस आ रहा है उस प्रोजेक्ट में लगाने से हमको, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक लाइफ क्या है उस प्रोजेक्ट की जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं। इकोनॉमिक लाइफ मतलब एक तो ये कि कितना टाइम में पैसा वापस आ रहा है वो, उसके बाद फिर हमें ऑल्दो हम बात वाले चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट एज सुन एज द प्रॉफिट, एज सुन एज द इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, उतना जल्दी हमको प्रॉफिट अर्न होना शुरू होगा। तो दिस पर्टिकुलर मेथड इज एम्फसाइजिंग ऑन एनुअल कैश इनफ्लोज, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक लाइफ। इट इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन। ये जो मेथड है ना, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है और सिंपल फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ हमको वैल्यू डालना है और हमको मिल जाएगा जो उसका पेबैक पीरियड है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी जैसे बताया था कि 10 लाख रुपीज़ का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है और एक साल एनुअल इनफ्लोज हो रहा है, एनुअल जो कैश इनफ्लोज है वो 1 लाख रुपया है हर साल का, तो ऑब्वियसली 10 लाख डिवाइडेड बाय हम 1 लाख करेंगे इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो दैट 10 वुड बी व्हाट, 10 years would be the payback period method। तो यही पर्टिकुलर वैल्यूज को हम फॉर्मूले में जब लिखेंगे, तो मैं आपको भी फॉर्मूला बताती हूँ कैसे होगा। तो दिस इन्वॉल्व्स सिंपल कैलकुलेशन, सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी मेड इजीली with the results which we will be obtaining after putting the values in the formula of this particular method। इस मेथड में हम लोग ऑन द बेस जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसमें जो भी जिसका भी पे बैक पीरियड लेंदी होगा उसको हम नहीं चूज करेंगे। जिसका भी शॉर्टेस्ट होगा हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टमेंट को समझेंगे कि हाँ दिस इज मोर प्रॉफिटेबल या मोस्ट प्रॉफिटेबल। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब सपोज हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कैन बी से अब मशीनरी, एक मशीनरी हमने बाय करी है, वही एक प्रोजेक्ट है सपोज हमारा। तो वो मशीनरी से हमको जो इन्वेस्टमेंट करने से जो हमको मिल रहा है प्रॉफिट, वो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो हर साल बराबर ही प्रॉफिट मिल रहा है, दैट विल बी इक्वल कैश इनफ्लो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लाख रुपए की मशीन हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और उस मशीन की वजह से हमको हर साल में जो इनफ्लोज बढ़ना शुरू हो गया वो 1 लाख रुपीज़ का है, किसी भी फॉर्म में हो गया। फॉर एग्जांपल उस मशीन से हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करने मिल रही है, तो वो प्रोडक्शन जो ज़्यादा कर रही है वो मशीन, वो हर साल बराबर प्रोडक्शन कर रही है और एक बराबर का हमें इनफ्लो हो रहा है, या तो वो होगा, या फिर होगा कि कभी किसी ईयर में ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो वो अनइक्वल कैश इनफ्लो होगा। अनइक्वल कैश इनफ्लो एवरी ईयर या इक्वल कैश इनफ्लो एवरी ईयर, दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो दोनों इन सिचुएशन के लिए दो अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। जो इक्वल वाला है वो तो बहुत इजी है, उसमें सिंपल हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज हमने 10 लाख का किया था, एनुअल कैश इनफ्लो हमें दिखा रहा था कि हमने 1 लाख का लिया था, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे तो इक्वल टू 10 आ जाएगा। और अनइवन में हमको इस तरह से डालना है कि नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ पेबैक, बैलेंस टू बी रिकवर्ड, यानी कि बैलेंस कितना बच गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हमारा 1 लाख रुपए आया, तो बैलेंस कितना बच गया 9 लाख, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकवरी, कितना कैश इनफ्लो आया। तो इसमें ये पर्टिकुलर अनइवन में हमको हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें पेबैक पीरियड नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में। हर साल हमारे पास जितना जितना भी कैश इनफ्लो आता जा रहा है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से अनइवन कैश इनफ्लो में हमको इस तरह से इस फॉर्मूले में ये डालना पड़ेगा वैल्यू, और तब हमको मिलेगा। जैसे कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है उस जिसमें हमने 50,000 रुपया कॉस्ट इन्वेस्ट किया है, और जिसमें मैंने भी आपको 10 लाख का एग्जांपल दिया था और 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा था, 1 लाख पे बैक हो रहा था एवरी ईयर, या एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा था। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि 50,000 हमने लिया है प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, और 10,000 रुपया हमको हर साल उस प्रोजेक्ट में लगाने से वापस मिल रहा है। ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो एवरी ईयर मिल रहा है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू, बहुत ईजी है ये कि 5 ईयर्स में हमको ये पैसा वापस मिलेगा। अब अनइवन में हम क्या करेंगे, अनइवन में डिटरमाइन पीवीपी फॉर अ प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स अ कैश आउटले ऑफ 12,000 रुपीज एंड कैश आउट। ठीक है, कैश आउटले का मतलब यहाँ पर वही होगा कि इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो 12,000 की करी है, कैश इनफ्लो उसको करने से कभी 2,000 हो रहा है, किसी साल में 4,000 हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर में 4,000 हुआ और नेक्स्ट ईयर में 5,000 हुआ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हमको इस तरह से वैल्यूज दी कि इतना इतना पैसा हमने 12,000 रुपये लगाने से हमको मिला है। ठीक है, 2,000, 4,000, 4,000 और 5,000, यानी कि लास्ट ईयर फोर्थ ईयर के एंड में हमको 15,000 मिल गया।
लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कि हमें 12,000 कम मिला था, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 12,000 है। तो क्या आंसर 4 ईयर होगा? 4 ईयर्स में हमको 12,000 मिला? नहीं, हमको 4 ईयर्स में 12,000 नहीं मिला, हमको 4 ईयर्स और 3 ईयर्स के बीच में कोई टाइम है जिसमें हमको 12,000 मिला, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में तो हमको सिर्फ 10,000 रुपये मिला, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट 12 का किया है तो वो 2,000 रुपये और हमको कम मिला। फोर्थ ईयर में हमको 5 मिला, तो यानी कि 2,000 रुपीज़ जब हमको और एक्स्ट्रा मिल गया 10,000 से, तब हमारा वो पर्टिकुलर पीरियड वुड बी पे बैक पीरियड। तो वो कैसे हमें मिलेगा? इस फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो यानी कि 3.4 ईयर्स, 3 साल प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 3.4 ईयर, यानी कि 3 साल में एग्जैक्ट 3 साल के एंड में हमको 10,000 मिल रहा था। और फोर्थ ईयर को हम पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट अगर हमने उसका कैश इनफ्लो ले लिया तो वो 15 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। तो समवेयर इट इज 3.4 ईयर्स एग्जैक्टली जो इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड होगा, जिसमें कि अनइवन प्रॉफिट दिखा रहा है। अनइवन यानी कि हर साल में अलग अलग प्रॉफिट दिखा रहा है, एक जैसा प्रॉफिट हर साल में नहीं हो रहा, कभी कम भी हो रहा है, कभी ज़्यादा भी हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने 12,000 रुपये जब लगाया था, तो हमको 3 साल 3.4 ईयर्स में हमको बेसिकली 3 ईयर्स कुछ मंथ्स में हमको पूरे अपना इन्वेस्टमेंट जो मिल गया। सो द पे बैक पीरियड फॉर अनइवन एंड पे बैक पीरियड मेथड से जो हमको अनइवन के हिसाब से जो हमको कैलकुलेशन मिल रहा है पे बैक पीरियड का, दैट इज 3.4 ईयर्स। इसको आप ना इलिस्ट्रेशन लेकर भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई एक ही पर्टिकुलर मेथड आ रहा है। वैसे तो एक पर्टिकुलर मेथड नहीं आएगा, बट अगर एक पर्टिकुलर मेथड आता है तो आपको जितना इलिस्ट्रेशन आप ज़्यादा एग्जांपल लेके समझा सकते हैं वो आप समझाइएगा। बट अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन एक ऐसा बिग क्वेश्चन फॉर्म होकर आता है कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग एंड डिस्कस दी टेक्निक्स और दी मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो उसमें आप पांचों टेक्निक्स ही डिस्कस कर सकते हैं। पांचों मतलब 2 जो ट्रेडिशनल है और 3 जो मॉडर्न है, ठीक है। जैसे एनपीवी, पीआई एंड और जो भी हमारी बच रही हैं, या इसमें पेबैक पीरियड या आईआरआर या ईआरआर, ये पांचों हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हमें पूरा क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अगर किसी एक के बारे में आ रहा है तो आप ऑब्वियसली टॉपिक को स्टार्ट तो करेंगे एक्सप्लेनेशन बाय डिफॉल्ट वहीं से ही, जैसे कैपिटल बजटिंग, उसका मीनिंग, उसका और बेनिफिट्स और जो भी आपको जितना भी उसके बारे में नॉलेज है वो सब डालने के बाद उस पर्टिकुलर मेथड को जो अगर एक आया है उसको हमें एलेबोरेट करके बताना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इस वाले मेथड को डिस्कस करने के लिए आता है, पे बैक पीरियड मेथड डिस्कस इन डिटेल, तो आप इसमें 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एग्जांपल लेके। ये वैल्यूज जो मैंने डाली हैं ज़रूरी नहीं आप यही वैल्यूज डालें, आप इसको 2,000, 3,000, 5,000 भी कर सकते हैं। 4 साल की जगह आप ज़्यादा साल भी इसको डाल सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो आप फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसमें वैल्यू जो ये डाल के और जो कैलकुलेशन जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो गलत नहीं हो। आपका जो फॉर्मूले में आप जो वैल्यू रख रहे हैं उसके हिसाब से ही आप ये दिखाएंगे। 3.4 ईयर ज़रूरी 3.4 ईयर्स दिखाएं, आप इसको 3 ईयर्स करके भी दिखा सकते हैं या वट एवर। अनइवन में ये थोड़ा पॉइंट्स में ही आएगा आंसर, और इवन वाले उसमें जिसमें कि हमारा कैश इनफ्लो एवरी ईयर सेम हो रहा है, उसमें जो है वो इजी थोड़ा ज़्यादा है, और उसमें जो वैल्यू आएगा वो मोर और लेस राउंड फिगर में होगा। तो इसका जैसे मैंने अभी पे बैक पीरियड मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो इस तरह से आप 2 प्रॉब्लम्स लेके या 3 भी या 4 भी प्रॉब्लम्स लेके दिखा सकते हैं। लेकिन ये तभी करेगा जब आपको एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन के लिए, अगर आपको पांचों एक्सप्लेन करने हैं तो पांचों को आप बराबर एक्सप्लेन करिएगा, कि एक में अगर आप एग्जाम्पल मेथड में एक दे रहे हैं तो बाकी पांचों में भी एक एक करके आप बाकी चारों में भी आप एक एक करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम दिखाएंगे तो चल जाएगा। इसमें मैं हमने 2 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले हैं, एक में इवन है, एक में अनइवन है, तो इस वजह से लिया है। वैसे ये प्रॉब्लम मैं आपको बोलती हूँ, कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3 मॉडल्स मशीन फॉर एग्जांपल, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आपको यू बीइंग अ पर्सन जिसको बताया जाए कि ठीक है हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हमें तीनों में हमें 90,000 ही इन्वेस्ट करना है, और 4 सालों के हिसाब से 4 सालों में 90,000 इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट ए हमको ये बेनिफिट दे रहा है, प्रोजेक्ट बी हमको ये दे रहा है, प्रोजेक्ट सी हमको ये दे रहा है। सो यू बीइंग द एक्सपर्ट, आप हमें बताइए कि पे बैक पीरियड मेथड के हिसाब से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें कि सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट जो है वो मिल जा रहा है। ये बहुत इजी है, देखने में इजी है कि 20 + 30 + 50 + 50, यानी कि पहले 2 ईयर्स में 50 आ गया, सेकंड इसमें मॉडल ए में थर्ड ईयर में ही
हमें लाख रुपया मिल गया, 20 + 30 + 50 हमने इन्वेस्ट किया था 90,000। मॉडल बी में भी हमको फर्स्ट 2 ईयर्स में 70,000 मिल गया, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा मिल गया। लेकिन मॉडल सी जो है उसमें हमें चारों सालों में बराबर हो रहा है, यानी कि इवन कैश इनफ्लो हो रहा है। तो इवन वाले फॉर्मूले से हम ये देखेंगे 35 जो भी है, 35 + 35 + 35 कितने टाइम में हमको 90,000 वापस मिल रहा है। और जो प्रॉब्लम बी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये है कि ये 3 साल का सपोज है कि हमने स्टैंडर्ड रखा है कि हमें 3 साल में मिलेगा, 15,000 रुपया हमने इन्वेस्ट करा है। इनिशियल आउटले ऑफ ईच फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज, यानी कि प्रोजेक्ट ए बी सी डी और चारों प्रोजेक्ट में हम 15,000 ही लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड पेबैक मेथड इज 3 इयर्स। इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट एंड रैंक देम। इसमें हमें रैंक करना है, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि 3 साल के अंदर हमको पैसा वापस मिल जाना चाहिए पूरा। तो कौन से प्रोजेक्ट में 3 साल में मिल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में 3 साल से ज़्यादा में मिल रहा है या कम में भी मिल रहा है, हम वो मेथड जो ये फॉर्मूला है उसमें वैल्यू कैलकुलेट करके हम पे बैक पीरियड मेथड को कैलकुलेट करेंगे कि कौन से किस में लेंदीएस्ट है पे बैक पीरियड, किस में शॉर्टेस्ट है। जिसमें शॉर्टेस्ट होगा उसके हिसाब से हम इसको रैंक कर देंगे, जो उसका शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड होगा वो टॉप पे आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट्स एंड रैंक देम बेस्ड ऑन द पे बैक पीरियड। तो रैंक कैसे हम करेंगे, फर्स्ट को हम रैंक करेंगे वो जिसका सबसे शॉर्टेस्ट है, यानी कि 15,000 रुपए इन चारों प्रोजेक्ट में से सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट ने हमको वापस दे दिया। देखने से तो डी लग रहा है कि 8,000 रुपये उसने पहले ईयर में 8,000 रुपये दे दिया, मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 15,000 उसने हमें पहले ही दे दिए, है ना। देन 6,000 मिल गया हमको, यानी कि 14,000 हमको आउट ऑफ 15, 14,000 हमको 2 साल में ही मिल गया। तो 2 पॉइंट सम ईयर्स में हमको प्रोजेक्ट भी सबसे पहले वापस करके दे रहा है पैसा। तो अब हम इसको, लेकिन ये तो हो गया हमारा कि देखने से इजीली हमको समझ आ रहा है, बट आप इन पर्टिकुलर दोनों चीज़ों की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर अगर इस फॉर्मूले में पुट कर अगर देख लेंगे तो आप दिखा सकते हैं और रैंक वाइज आप बता सकते हैं कि विच पर्टिकुलर मेथड इज बेटर और दी बेस्ट, या फिर डी बेस्ट हो गया, उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन सा होगा, थर्ड बेस्ट कौन सा होगा। सेकंड बेस्ट देखने से समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट ए है जो 5-5 हज़ार करके हमको दे रहा है, तो पहले 2 साल में नेक्स्ट बेस्ट जो प्रोजेक्ट हुआ वो ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट जो वो बी हुआ। सो इसमें हम रैंकिंग अगर करेंगे तो डी प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट दिख रहा है हमको, नेक्स्ट है फिर ए, फिर डी है एंड सी इज दी वर्स्ट, क्योंकि उसमें सबसे कम बेनिफिट हो रहा है। 2,500 रुपये करके मिल रहा है हमको, कितने टाइम के बाद मिलेगा, टोटल 15,000 वापस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मेथड की पीबीपी जिसको हम बोल रहे हैं, पे बैक पीरियड या पे ऑफ मेथड जो भी था, इस पर्टिकुलर मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो यही है इसका एडवांटेज कि ये मेथड जो है सबसे इजी है। अभी जो आगे और मेथड हम पढ़ेंगे अभी, उनके थोड़े से टिपिकल भी हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होते जा रहे हैं, बट ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ये बहुत सिंपल है। और इसमें हम दूसरी बात की प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और बात नहीं कर रहे, सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमने जितना प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वो हमें कितने टाइम में वापस मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस भी तो ये होगा कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है। फाइंडिंग आउट द प्रोजेक्ट्स व्हिच जनरेट सब्सटेंशियल कैश इनफ्लोज इन अर्ली ईयर, हमें ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें अच्छा कैश इनफ्लोज दे रहा है। सब्सटेंशियल मतलब रिमार्केबल, इंपॉर्टेंट और बड़ा एक फिगर जो नोटिसेबल है, वो हमें कैश इनफ्लोज शुरू के सालों में कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है, यानी कि कितना जल्दी उस पैसे को हम रिकवर कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। इससे हेल्पफुल इन वीडिंग आउट द रिस्की प्रोजेक्ट्स, कि जो भी हमारे रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, रिस्की मतलब जैसे कि अगर हमारे पास ये 4 प्रोजेक्ट्स थे तो इसमें से हमें अगर दो चूज करने हैं तो हम बी और सी को निकाल देंगे, हम डी को चूज करेंगे और ए को चूज करेंगे। तो इसका जो एडवांटेज है ये थर्ड वाला, इसका ये मतलब है कि हम इसमें से वी कैन वीड आउट द रिस्की प्रोजेक्ट्स। जो हमारे पास रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा रिस्की तो सी प्रोजेक्ट है। सी प्रोजेक्ट कितना स्लो प्रॉफिट दे रहा है, 2,500 रुपये करके हमको मिलेगा साल में, फिर नेक्स्ट ईयर में 5 हुआ, फिर 7.5 हुआ, फिर 10,000 हुआ, और 5 साल के बाद भी हमको 15,000 वापस नहीं मिल रहा है सी से, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की हो गया हमारे लिए। तो वी कैन वीड आउट इस मेथड से एक ही बेनिफिट है कि जो भी हमारे रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं वी कैन थ्रो देम आउट एंड वी शुड नॉट चूज देम, और वी आर एबल टू एक्चुअली चूज which are the risky projects and we should not choose them.
Next is this method. This method is finding out the project that makes early realization of funds. Early, of course, जो early का मतलब जैसे सॉरी जैसे ये डी प्रोजेक्ट है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि अर्ली हमें बेनिफिट किस में हो रहा है. सो दैट इज डी. नंबर ऑफ लेस या लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स में या लीस्ट टाइम पीरियड में हमको कौन सा प्रोजेक्ट वापस पैसे कर रहा है इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज हेल्पिंग अस. या ठीक है, इट हेल्प्स अस टू इनहेंस द लिक्विडिटी कि कौन सी प्रोजेक्ट में हमको पैसा सबसे ज़्यादा मिल रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट है जो हेल्प करेगा हमारा टू इनहेंस द लिक्विडिटी. This method also helps to reduce the cost of calculation. Cost of calculation ये reduce क्यों कर रहा है? क्योंकि इस particular method से जो भी calculations हमको करने की कोशिश है वो simple mathematical formula है और हमें कोई बहुत ज़्यादा expertise नहीं चाहिए. तो एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, गवर्नमेंट को अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कहीं पर अप्लाई करना है या एज एन इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में हमको एज ए बिजनेसमैन हमको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला विच एनीबडी कैन पुट द वैल्यू इन एंड कैलकुलेट. तो इस पर्टिकुलर मेथड से जो हमें कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए हमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है या कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट का पर्सन नहीं हमको चाहिए हायर करने के लिए जो हमें इसकी कॉस्ट को कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेगा. और इसीलिए ये मेथड हमारा जो है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन. कोई भी कैलकुलेशन करके दे सकता है. हमें एक हाई एक्सपर्टीज स्पेशल पर्सन की जरूरत नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि सपोज कोई बहुत हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करवाना है जो कि सपोज कोई एक इंजीनियर कर सकता है या कोई एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन कर सकता है जो बाकी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता. तो उसको हायर करने का कॉस्ट लगेगा ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उससे वो काम करवाने के लिए वो कॉस्ट लगेगा. तो इस पर्टिकुलर मेथड के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल एंड एनीबडी कैन गो अहेड विद दिस. सो इट आल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस द कॉस्ट. ये सारे एडवांटेजेस थे. इस पर्टिकुलर मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इग्नोर्स ऑल द कैश इनफ्लोज आफ्टर पे बैक मेथड. जो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हमने जो पैसा लगाया वो हमें कितने टाइम में वापस मिल रहा है, बस. उसके बाद बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद क्या कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कितने परसेंटेज से प्रॉफिट हमको हो रहा है. हम ऑब्वियसली कुछ भी पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया वो तो ऑफ कोर्स हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही चाहिए. उसके अलावा उसके ऊपर बेनिफिट होकर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट होकर क्या मिल रहा है, वो हमारा मेन पॉइंट है. लेकिन वो चीज़ इस मेथड में इग्नोर हो जाती है. हम सिर्फ पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं कि हमें 2 साल 4 साल 5 साल के बाद पैसा वापस मिल गया पूरा अपना. उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमने इन्वेस्टमेंट क्यों ही करा, गलत ही करा. फिर तो ये 10 लाख रुपए हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल बाद हमको वापस तो मिल गया पैसा 10 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर जो बेकार था वो इन्वेस्टमेंट करना. तो इसलिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है इस मेथड का. ये सारे कैश इनफ्लोज जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जो भी इनफ्लोज आ रहा है हम उस पर फोकस करते ही नहीं है. जैसे हमने ऊपर अनइवन वाले में देखा है अभी फॉर्मूले में कि 3.4 ईयर्स आया, तो 3.4 ईयर्स यानी कि चौथे साल में उसके बाद भी तो कुछ हमें प्रॉफिट हुआ, जो कि 12 इन्वेस्ट करने से 15,000 दे रहा था फोर्थ ईयर में. हमने वो फोकस नहीं करा. हमने देखा 3.4 ईयर्स अच्छा, वापस 3.4 साल में वापस आ गया, यही हमको देना है करके पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. सो इट इग्नोर्स. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. This method does not consider the total benefit from the project. कोई benefit total क्या हो रहा है प्रोजेक्ट से वो भी इग्नोर करता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे हमने बताया था पहले ही फीचर्स में इस मेथड का कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेता. हम यही समझ रहे हैं कि जो आज मनी की वैल्यू है वही सेम मनी सेम रहेगी टोटल पीरियड ऑफ पे बैक मेथड. मतलब पे बैक पीरियड जो भी रहेगा 5 साल का, 6 साल का या 10 साल का या 2 साल का, हम वैल्यू ऑफ मनी को जो चेंज हो रहा है अगर होगा टाइम के हिसाब से तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि सेम ही रहेगा. इट ओनली फाइंड्स द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी. जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हमने कैलकुलेशन नहीं करा, हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं कि पे बैक पीरियड के बाद क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा. वी आर नॉट फाइंडिंग दैट, वी आर ओनली फाइंडिंग द रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसका रिकवरी फाइंड आउट कर रहे हैं बस. प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो नहीं कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इट ऑल्सो इग्नोर्स द स्क्रैप और साल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर लाइफ. स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? स्क्रैप वैल्यू और द salvage वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट.
कोई एक मशीनरी है, फॉर एग्जांपल कोई एक मशीनरी है और हमने उसको, उसका लाइफ था कि 10 साल चलेगा ये, या कोई भी हम अपने अपना इंडिविजुअल एग्जांपल घर का ही लेते हैं कि हमने कोई मशीन खरीदा, हमने फ्रिज लिया या हमने एसी लिया, कुछ भी ऐसा हमने बाय करा और हमें पता चला उसको बाय करने से कि इसकी लाइफ 5 साल की है या 10 साल की है, जो भी 5 साल चलेगा ये प्रोडक्ट। बेसिकली हमने उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसा लगाया, हमने 50,000 का एक एसी खरीदा और हमें पता चला कि ठीक है 5 साल चलेगा ये, तो पर एनम उसका कॉस्ट एक तरीके से 10,000 रुपये हो गया। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स उसको हम एटलीस्ट कहीं पर कुछ तो बेच सकते हैं, स्क्रैप में तो बेच सकते हैं उस पर्टिकुलर एसी को, जो हमें ऑब्वियसली अब अपना काम नहीं करके देगा, जो एसी का काम है कूलिंग इन ऑल दैट वो नहीं करके देगा, बट कुछ स्क्रैप तो बच ही जाता है। तो अगर हम उसको स्क्रैप में बेचते हैं तो कुछ एक स्क्रैप वैल्यू हमको मिलता है। इस मेथड में हम वो कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू को ना हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के बाद में, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो मशीनरी है फॉर एग्जांपल जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था, तो वो मशीनरी को हम बाद में कहीं पर स्क्रैप में बेच सकते हैं, एटलीस्ट लोहे के भाव तो हमको कुछ मिलेगा, उसका कुछ वैल्यू मिलेगा ही। तो वो सब कुछ हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन जो अभी मैं आगे आपको मेथड्स पढ़ाने वाली हूँ उसमें हम स्क्रैप वैल्यू को भी कहीं ना कहीं फैक्टर करते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में ही हमने पैसा अगर लगाया और वही प्रोजेक्ट या वही मशीनरी को अगर हम स्क्रैप वैल्यू में, स्क्रैप में बेच रहे हैं, तो कुछ वैल्यू को हमको अर्न करके दे रही है अगर, तो वो भी तो एक तरीके से हमारा प्रॉफिट ही है उसकी वैल्यू, तो वो हम कंसिडर करना चाहिए हमें उसको, जो इस मेथड में नहीं करते, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। लेकिन कुछ में हम आगे करेंगे तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मेथड इज ARR। यहाँ इस मेथड में कुछ इशू है किसी को दोनों फॉर्मूले से, तीनों फॉर्मूले से, या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो उसमें रैंकिंग से कुछ किसी को क्वेश्चन है इसमें अभी तक? Payback period method is clear to everybody then. Okay, so the next traditional method or the traditional approach of capital budgeting is ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हम फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज डालेंगे हम उनको एवरेज वैल्यूज लेंगे, क्योंकि इसका मेथड का नेम ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। तो एवरेज वैल्यू डालना है, जो भी हम दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज कहीं पर भी जो भी लेंगे वो हम पहले से ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर एवरेज वैल्यू डालेंगे, और फिर उस फॉर्मूले का जो भी पर्टिकुलर आगे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो हमें फिगर या मिलेगा, जो भी एक आउटकम, वो हमारा ARR के थ्रू होगा। लेकिन ARR हमको बताता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने आपको पहले वाले फॉर्मूले के भी कुछ दूसरे नेम्स भी बताए थे। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, गिव मी 1 मिनट। How many get over after 5, 6, 7 minutes? What is usually saying? Okay. Coming back to ARR, this is also called rate of return. जैसे मैंने आपको payback period method के भी एक दो names और बताए थे, payback period का। इस तरीके से ARR के भी अलग से कुछ और names भी हैं, जैसे rate of return method का मतलब भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड अगर हम
बात करें तो वो भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही है। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ द पे बैक पीरियड। जो पे बैक पीरियड मेथड का कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो पहले थी, उनको ओवरकम करने के लिए ये मेथड बनाया गया। बट इस मेथड के बाद भी बहुत सारे मॉडर्न अप्रोचेस आ चुकी हैं, बट हम सिक्वेंशली पढ़ रहे हैं तो पहले हम जो है ओल्ड टेक्निक्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें पे बैक पीरियड मेथड था और नेक्स्ट आया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जब आया तो इस मेथड ने कुछ ओवरकम की जो डिसएडवांटेजेस थी पिछले वाले मेथड की, जो कि पे बैक पीरियड मेथड है। इट कंसिडर्स ऑल द ईयर्स अर्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इस मेथड में हम सारे पूरे साल की, जैसे उसमें लास्ट में हमने एग्जाम्पल्स दिए थे 5 साल की सारी अर्निंग्स, लेकिन किस प्रोजेक्ट में अगर हमने 3 साल में ही अर्न कर लिया, पे बैक पीरियड हमारा वही हो गया, तो हमने चौथे और 5वें साल की अर्निंग्स को कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन ये मेथड में हमको पूरे साल जितने भी सालों की अर्निंग्स है, सारे सालों की अर्निंग्स हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज निकालते हैं। तो इसलिए जो भी अर्निंग्स प्रोजेक्ट से हो रही हैं, बाद में भी पहले भी जितने भी सालों का वो प्रोजेक्ट है, टोटल अर्निंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम एवरेज अर्निंग लेंगे, हम किसी एक साल की अर्निंग को लेकर कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, जो भी आउटकम है। It is also based on the conventional accounting concepts. It is based on conventional accounting concepts. ये भी ध्यान रखना है आपको कि हम थोड़ा बहुत accounting concepts को भी यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाले में। The rate of return is expressed as percentage. जहाँ पर रेट आ जाता है ना कि किस रेट से हम मतलब किस रेट से अर्निंग होगी, किस रेट, तो रेट का मतलब है कि कितना परसेंटेज से, यानी कि 20%, 30%, whatever percent, it is based, so this particular rate of return is expressed as the percentage of the earnings। यानी कि इस फॉर्मूले से हम जो भी आउटकम निकालने वाले हैं वो हमें परसेंटेज में मिलेगा, और हमने बेसिक जो मैथमेटिकल हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से परसेंटेज में अगर हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं इंटू 100 हमको करना पड़ता है, जो हमने स्कूलिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में हम इंटू 100 भी करेंगे, मैं आपको भी वो फॉर्मूला भी दिखाती हूँ। So the profits under this method is calculated as profit after depreciation and tax of the entire life of project। जो मैंने बताया ऊपर की फोर्थ पॉइंट में कि कन्वेंशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ये फॉलो करता है, यानी कि हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, और टैक्स अगर उसके वजह से हमको कुछ पे करना पड़ रहा है हम उसकी भी वैल्यू लेते हैं। अगर हम टैक्स बेसिकली प्रॉफिट में दिखा देते हैं तो हमारा वो रॉन्ग फिगर देता है हमको, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो टैक्स गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं, और जो हमने दे दिया वो हमारी इनकम नहीं हुई, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस मेथड में हमने जो पुराने मेथड के जो डिसएडवांटेजेस थे ओवरकम करने के लिए हमने इनमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन भी, टैक्स भी, और ये हमको जो फिगर देगा वो परसेंटेज में देगा, और हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो भी फिगर डालेंगे वो एवरेज ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे फिर डालेंगे। ये मेथड है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मेथड ये हुआ कि एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स प्लस एंड डेप्रिसिएशन, जो भी टैक्स और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी को पता है डेप्रिसिएशन? यू बीइंग द कंप्यूटर साइंस पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एन अकाउंटिंग टर्म। बताइए मुझे किसी को अगर डेप्रिसिएशन के बारे में पता है तो कि क्या होता है। आप लोग कुछ पूछते भी नहीं है, अगर आपको नहीं पता होता कुछ भी, मैं कोई ऐसा टर्म यूज कर रही हूँ जो आपने पहले नहीं सुना या आपको नहीं पता, यू हैविंग दी डिफरेंट और दी अदर बैकग्राउंड, यू डू नॉट आस्क मी आल्सो कि मैम डेप्रिसिएशन क्या होता है। टैक्स टू सर्टेन एक्सटेंट इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी, बट डेप्रिसिएशन यू मे नॉट अंडरस्टैंड। डेप्रिसिएशन मीन्स जो भी नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है या लॉस होता है, तोड़ फोड़ होती है या तोड़ फोड़ नहीं भी हुई, तो एक प्रोडक्ट को, जो एक प्रोडक्ट है जैसे मशीनरी ही है, उसको यूज करने से जो वियर एंड टीयर होता है कि उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू कम होती है, बिकॉज हमने उसको 1 साल यूज कर लिया, 2 साल यूज कर लिया, 4 साल यूज कर लिया, तो वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हर साल कुछ ना कुछ मशीनरीज का, जो फिक्स मशीनरीज हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट तो होगी ही ना। जो वैल्यू आज है वो 1 साल बाद, आपके फोन की जो वैल्यू आज है वो 1 साल बाद नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम उसको यूज करके उसका वैल्यू कम करते हैं। So that is called depreciation. In detail, I'll discuss this method in the next class because meeting is about to over in just less than a minute, in just few seconds. तो इसको डिटेल में मैं कैसे एग्जांपल ये देकर आपको बताऊंगी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट येट कंप्लीटेड।
उसको अच्छे से तो मुझे बताइए। ठीक है, ओके, आई एम assuming that everything is clear to everyone. Thank you for your time. Bye.